Good morning all. Today we will start book exercise of chapter 13. As we have read earlier, I think you all have done your exercise. Let us start with the part 1. Tick the correct option. Before assuming office of the Sultan of Delhi, Balban was the Prime Minister of which Sultan? Options are Nasiruddin, Razia, Bahram or Qutbuddin Aibak. So I think you have remembered that he was the Prime Minister of Nasiruddin. Next one is, which Sultan made a successful attempt to free himself from the control of ulemas? Which Sultan made a successful attempt to free himself? It means who was not under control of ulemas. Options are Balban, Firoz Shah, Alauddin and Sikandar Lodi. And your answer is Alauddin Khalji. Which one of the following cities was not founded by Firoz Tughlaq? You have options. I repeat the question. Which one of the following cities are not founded by Firoz Tughlaq? यानी कि कौन सा शहर फिरोज तुगलक ने नहीं बसाया था? Options are Firozabad, Jaunpur, Hisar and Fatehpur. And the right one is Fatehpur Sikri. It was founded by Mughal Emperor Akbar. The first ever lady Sultan of India, Razia Sultan, ascended the throne in 1236 CE after Iltutmish, Qutbuddin Aibak, Bahram Shah और रुकनुद्दीन. पहली महिला शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी वो किसके बाद बैठी थी? ऑप्शंस आर इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, रुकनुद्दीन. As we know, Qutbuddin was the first ruler, and after his death, Aram Shah became the ruler. But as he was not an able administrator, so nobles of his court make Iltutmish as the ruler. And Iltutmish, after Iltutmish was died, his son Ruknuddin became the ruler. He ruled over for a very short period of time, and after his death, Razia became the ruler. So, option Ruknuddin is the right answer. Which one of the following statements regarding Firoz Tughlaq is not correct? He patronized ulemas. He led him many fruit gardens. He exempted the Hindu from paying jizya. He helped the poor Muslim. I repeat the question. Which one of the following statement regarding Firoz Tughlaq is not correct? इनमें से कौन सी statement correct नहीं है regarding Firoz Tughlaq? He patronized ulemas. This one is absolutely right. He laid many fruit gardens. As we have read earlier, he laid 1200 fruit gardens around Delhi, NCR. दिल्ली और इसके आसपास 1200 फ्रूट वाले बागीचों का निर्माण कराया था फिरोज तुगलक ने. He helped the Muslim poor. ये भी ठीक है. Even he helped the poor widow for the marriage of their daughters. He exempted the Hindus from paying jizya. ये गलत है क्योंकि उसने जजिया तो इम्पोज किया था ना कि हटाया था, एग्जाम्प्ट किया था. नेक्स्ट है बेटा, स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय फर्स्ट वन कुतुबुद्दीन ऐबक. डैश फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ आगरा इन 1506. द राइट ऑप्शन इज सिकंदर लोदी फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ आगरा इन 1506. नेक्स्ट है बेटा, Ibrahim Lodi was defeated by, it is very important. Ibrahim Lodi was defeated by Babur in the first battle of Panipat in 1226 CE. Ibrahim Lodi was defeated by Babur in the battle of Panipat in 1526. Hindu society was based on caste system. Hindus' foreign trade was carried on both by land and sea. भारतीय व्यापार समुद्र मार्ग के जरिए और लैंड मार्ग के जरिए या
ज़मीनी रास्ते से और समुद्री रास्ते से विदेशों से किया जाता था। डैश वाज द राइटर ऑफ तारीख फिरोज शाही। हु रॉट दिस? यस, ज़ियाउद्दीन बुरानी was the writer of Tarikh e Firoz Shahi. Now match it. First one, Alauddin. Alauddin made Alai Darwaza. At its name suggests Alauddin Khilji made the Alai Darwaza. Taimur. Taimur was the ruler of Samarkand. We have read that he bring our artisans to decorate his capital Samarkand. Next, Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq belongs to Juna Khan. Or he was named as Juna Khan. When he became the ruler, he changed his name as Muhammad bin Tughlaq. Quwait al-Islam was the famous mosque formed by or made by Qutbuddin Aibak. Quwait al-Islam Mosque was made by Qutbuddin Aibak, and Muhammad Ghori invaded India during Prithviraj Chauhan time period. When Prithviraj Chauhan was the ruler of Delhi, Muhammad Ghori invaded India in the time period of Prithviraj Chauhan. Now let us start our short answer type question answers. Our first question is, name any two literary gems of Qutbuddin Aibak's court. Name two literary gems. We have read about this. The two literary gems of Qutbuddin Aibak's court were Hasan Azmi and Mubarak Shah. Next one. When and between whom was the first battle of Panipat fought? पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था और कब? In 1526, the first battle of Panipat was fought between Abraham Lodi and Babur. पहला पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था. Babur was invited by the opponents of Ibrahim Lodi. आपको याद होगा कि बाबर जो है वो अपने एक मित्र के निमंत्रण पर भारत आया था और वो मित्र जो है वो इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी हासिल करना चाहता था. लेकिन जब बाबर ने यहाँ की सोने और धन संपत्ति को देखा, ज्वेलरी को देखा, एग्रीकल्चर को देखा, तो वो चकाचौंध रह गया कि कितना संपन्न देश है और उसने फैसला किया कि दिल्ली की गद्दी तो वो खुद ही हासिल करेगा. तो वो मुसलमान जिसने कि बाबर को बुलाया था. So दौलत खान, who was the friend of Babur, who invited him to attack on Ibrahim Lodi, वो बाद में बड़ा पछताया होगा कि क्यों उसने ऐसी मूर्खता की, ऐसी गलती की. और बाबर के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई. नेक्स्ट वन बेटा, mention 4 social evils prevalent in the Hindu society. I hope everybody have found this. ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है बुक एक्सरसाइज में से. Mention 4 social evils prevalent in the Hindu society during the Sultanate period. वो 4 social evils बताएं. आप ज़्यादा भी बता सकते हैं जो कि उस समय हिंदू सोसाइटी में थी. 4 social evils prevalent in the Hindu society during the Sultanate period were 4 major social evils, जो उसमें बहुत ज़्यादा समाज में फैली हुई बुराइयां थी हिंदू समाज के अंदर. वो कौन कौन सी थी? तो हमने बहुत सारी कुरीतियों के बारे में पढ़ा है जिनको बाद में फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने ख़त्म किया. लेकिन वो थी कौन कौन सी? इट वॉज सती सिस्टम. सती सिस्टम क्या था कि जब कोई किसी लेडी का हस्बैंड गुजर जाता था तो उस लेडी को अपने हस्बैंड के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था. अगर वो ऐसा करने से मना करती थी तो ज़बरदस्ती उसको उसके हस्बैंड की चिता के साथ बांध दिया जाता था. इट वॉज नॉन एज सती सिस्टम. और इसको अपोज किया या इसको बैन करवाया राजा राम मोहन राय ने, क्योंकि वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे. उन्होंने
ही वॉज द फेमस सोशल रिफॉर्मर ऑफ दैट टाइम। और उन्होंने इसके लिए ज़बरदस्त संघर्ष किया, मूवमेंट्स लाए, बार बार ब्रिटिशर्स को एप्लीकेशंस दी और लोगों को जागरूक किया, ब्रिटिशर्स को बार बार अवेयर किया इस चीज़ के बारे में। और अल्टीमेटली ये कानून बना कि किसी भी महिला को ज़बरदस्ती ज़िंदा नहीं जलाया जा सकता उसकी इच्छा के खिलाफ उसके पति के साथ, या जलाया ही नहीं जा सकता जिंदा। नेक्स्ट इविल वॉज चाइल्ड मैरिज, और दूसरी कुप्रथा थी बाल विवाह, जो आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में है, स्पेशली इन राजस्थान में आज भी छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती हैं। और उसके बाद क्या होता था, अगर छोटी उम्र में ही वो लड़की विधवा हो जाती थी तो उसे सारी जिंदगी विधवा ही रहना पड़ता था। बैन ऑन विडो रीमैरिज, हिंदू सोसाइटी में विडो रीमैरिज वॉज बैन, नहीं शादी कर सकती थी महिलाएं, दोबारा पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी विधवाएं। एंड फीमेल एजुकेशन, और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इवन कि ये भ्रम था लोगों के दिमाग में कि अगर उनकी बेटियां पढ़ जाएंगी तो वो शादी के बाद जल्दी ही विधवा हो जाएंगी, ऐसा वो लोग मानते थे। सरप्राइज, कितनी अलग अजीब विचारधारा। इवन उस टाइम में ये भी थॉट थी, ये भी लोगों का व्यू था कि अगर हम लोग समुद्र के रास्ते किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो उससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाने से इनकार करते थे। ये कॉमन मैन की आइडियोलॉजी थी, कॉमन मैन की व्यूज थे। जो पढ़े लिखे लोग थे उनके साथ ऐसा नहीं था, इसलिए जो पढ़े लिखे माता पिता थे उन्होंने अपनी बच्चियों को घर पे ही ट्यूटर प्रोवाइड किया ताकि वो पढ़ सकें। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन योर 10th क्लास। नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनरी क्लास ऑल्सो। Mention 4 items which were exported from India. एक्सपोर्ट मीन्स हम जिस चीज़ को विदेशों में बेचते हैं वो हमारा एक्सपोर्ट कहलाता है, और हम जिन चीज़ों को अपने यहाँ पर मंगवाते हैं उन्हें हम इंपोर्ट कहते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था? स्पाइसेस, इंडिगो, टेक्सटाइल, सिल्क एंड सैंडलवुड। मसाले, नील, इंडिगो मीन्स नील, जो कपड़ों में हम देते हैं उसे नील कहते हैं। पहले उसकी खेती की जाती थी और उसकी खेती के लिए करने के बाद ज़मीन बंजर हो जाती थी और बहुत अच्छी किस्म का नील हमारे यहाँ पर उगाया जाता था। टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा, सिल्क यानी कि सिल्क जो कपड़ा हम इस्तेमाल करते हैं, सैंडलवुड होता है चंदन। हम इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट हम करते थे अरबी घोड़े, शराब, सिल्क, हाथ से बने हुए कपड़े, ग्लास से बनी हुई चीज़ें और रॉ सिल्क को हम लोग इंपोर्ट करते थे। यहाँ नेम 2 सुल्तान्स हु केप्ट द उलेमा अवे फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। वो कौन से 2 सुल्तान थे जिन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में उलेमाओं के इंटरफेरेंस को ख़त्म कर दिया था? द नेम इज अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। हियर इज सम करेक्शन इन क्वेश्चन आंसर नंबर 4 बेटा। Spices, indigo, textile, silk and sandalwood were exported from India, and horses, wine, high-grade textile, glassware, raw silk, etc. were imported in India. ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। It's over for today. We will discuss all these in our online class.